کوئی ٹی وی پروگرام کر دیا آپ نے کر دیا. یہاں پہ پی ٹی آئی آج کل اپنے رونا دھو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین کر رہی ہے. میں ان کے مائی باپ کی بات کر رہا ہوں جو سائیکل کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ نے نکال دیا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں واپس لائے. میں تو شاید کوئی امریکہ بھائی باپ نہیں ہمارا, امریکہ نہیں, ٹرمپ ہے, ٹرمپ آگے شروع ہے. رونے کا نیشنل ڈے تھا آج. ابھی بھی صاحبہ میں بتاؤں گا کیوں روئی وہ, اور قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن رو رہی تھی جب آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آرمی چیف کی مدت 5 سال یا 15 سال, ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ, سپریم کورٹ میں قانون سازی اور امریکہ میں الیکشن. تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں کامران شاہد صاحب, ارشاد پٹی صاحب, اظہر صدیق صاحب اور عابد شیر علی صاحب. تو آئیے چلتے ہیں اسٹوڈیو میں اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. شروع بھٹی صاحب, ہاں آج کا تو بڑا مبارک دن ہے. میں اگرچہ کہہ رہا ہوں اپوزیشن رو رہی تھی, بشرا صاحبہ عدالت میں خیر آنسو سے رو رہی تھی, ان کا تو خیر, اور اپوزیشن ویسے رو رہی تھی. کیا اثر معاملہ تھا آج, کیسے دیکھتے ہیں؟ تاریخی دن ہے. دیکھیں بڑا ڈرامائی دن ہے, بڑا سنسنی خیز دن ہے, اور یعنی 40 منٹ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے. اور اظہر صدیق صاحب بتائیں گے کہ جو یہ کرنا چاہتے تھے, یعنی 10 سال جنرل فیض حمید رہیں گے 2028 تک, اور پھر اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم, اور پھر آگے, تو وہ مسلم لیگ نون نے کر دیا. یہ جیلس فیل کر رہے ہو؟ ہاں, پھر سخت جیلس فیل کر رہے ہیں. تو مجھے اعتراض 2-3 چیزوں پہ اعتراض ہے. دیکھیں تینوں سروسز چیفز کا بڑھ گیا, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. آپ نے 3 سال تھے 5 سال کر دیے. اعتراض ہے مجھے جلد بازی پر اعتراض ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کو ڈیبیٹ کر لی جاتی قومی اسمبلی میں, اس کو ٹیبل کر دیا جاتا. خفیہ رکھنے پر اعتراض ہے. مولانا صاحب جو وہ بتاتے ہوتے ہیں نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں بھی یہ شامل تھا جو کچھ آج قانون سازی ہوئی. جی. پھر ججز کی تعداد اگر 34 کر دی گئی ہے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ پینڈنگ کیسوں کی 34 کرنے میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں 100 کر دیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض. آپ کو اعتراض یہ ہے کہ شاید ججز اپنی مرضی کے لائیں گے؟ نہیں, وہ میں آگے بتاتا ہوں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں جو کہ نہیں لا رہے تھے. اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو پینڈنگ کیس 60,000 کیس پڑا ہے سپریم کورٹ میں, جس میں آئینی اور سیاسی کیس بھی ہیں, تو آئینی اور سیاسی کیس اور یہ جلدی سنے جائیں اس وجہ سے. جب وہ ہو گیا تھا تو پھر 34, یا پہلے 34 لے آتے تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت ہوتی. تو تو اب مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کہ پہلے تو پارلیمنٹ اور حکومت کے اندر عدلیہ کر دی گئی. اب یہ آخری کام کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی ہمارا کنٹرول ہو, سپریم کورٹ میں ہمارے من پسند کے ججز ہوں, آئینی بینچ کا سربراہ جو وہ سربراہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی ہمارا ہو, پارلیمانی کمیٹی میں آلریڈی ان کی 2/3 اکثریت ہے, جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کی اکثریت ہے, من پسند ججز من پسند فیصلے. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف جب آئے گی اقتدار میں اگر آگے چینج کرے گی تو کوئی چینج کرے گی. یہ تو سوٹ کرتا ہے نا ہر سیاسی جماعت کو, اپنا ہاں چیف جسٹس ہو, اب سب کچھ ججز ہو. حالانکہ یحییٰ افریدی صاحب ایسے نہیں ہے, لیکن پرسیپشن جس سے نہیں یحییٰ افریدی صاحب ایسے نہیں, لیکن یہ پرسیپشن ہے نا کہ وہ ان 2 سینئر کو چھوڑ کے تیسرے بنائے گئے ہیں, تو وہ بالکل غیر جانبدار. آپ کو جلد بازی میں صرف ہے, اور جلد بازی میں خفیہ رکھنے پر ٹیبل کرنا چاہیے تھا, ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اور کوئی کیا فرق پڑتا ہے, نمبر تو ان کے پاس پہلے ہی پورے تھے, منظور تو کروا لینا تھا. اظہر صاحب آپ کا کیا, میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ حکومت سے رائے لیں گے عابد صاحب سے, آپ کا کیا اعتراض ہے اس سارے معاملے پہ؟ یہ جتنا جو پہلے تو میں بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ کبھی ایسا کرنا ہے نہ کبھی ایسا کرے گی. کیا قانون سازی اگر کرنی ہے, آئین سازی کرنی ہے, پہلے عوام سے رائے لے گی. اگر عوام چاہتی ہوگی تو یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دینے کے لیے عوام سے رائے لی تھی. میں ویسے پوچھ رہا ہوں, میں پہلے بتاتا چلوں کہ ہم کوئی 85 کے پروجیکٹ نہیں ہے, یہ 85 کے پروجیکٹ سے پوچھے جن کا آنا جانا, ہمارا تو پہلا تجربہ تھا اور تجربہ اب آپ کے سامنے ہے. پہلی تو بات دیکھیں, 2 باتیں سمجھنی ہیں آپ کو. صفدر امان کا ابھی 2 دن پہلے ہی اگر آپ نے وہ سن لیا ہو کہ وہ جو فرما رہے تھے, صفدر امان کیپٹن صفدر, کیپٹن صفدر, میں نام نہیں کہتا آپ کی, ویسے میں نے کیپٹن کہہ دیا ویسے انہیں,
मैंने नहीं, उनका नाम- कैप्टन हाँ, क्यों रिटायर वो कैप्टन रिटायर छोड़े ना जी, रिटायर के बाद अब सफदर रवान है ना जी। अच्छा जी, सफदर रवान साहब। सफदर रवान ने सारा कुछ बोल दिया कि क्या कुछ हो रहा है। ये बेचारों की क्या हुकूमत है, क्या करना है इन्होंने। हम तो ऐसी किसी जुडिशरी के और ऐसी किसी गवर्नमेंट के आने के हामी नहीं है कि जो आप बैठकर पूरी पार्लियामेंट को अपने हाथ में कर ले और पूरी जुडिशरी अपने हाथ में कर ले। इस पे पूरी मेरी अभी आने से पहले मिसाल के तौर पर बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि आपकी पार्लियामेंट में बैठे ये जो कुछ हो रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को सामने रखते हुए। देखिए ये जो मैं भी उस वक्त यही कह रहा था कि आप जजेस की तादाद वैसे ही बढ़ा लें। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप 26वीं तरमीम करके, अब इन्होंने देखें ये एक्चुअली ख्वाब है नवाज शरीफ का। वो जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था ना, अगर आपको याद हो तारीखी तौर पर, और अब तो कोई डाउट रह नहीं गया कि एस्टैब्लिशमेंट के सर पे खेल के नहीं, लेकिन वो जो बनना चाहते थे वो तो सारा पावर अपने पास लेना चाहते थे उस जमाने अब में। तो इस वक्त सारी पावर वो दे रहे हैं। नहीं कोई पावर नहीं दे रहे किसी को। कहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर, कहाँ बेचारे के सर पास? मैं बताऊं, कोई पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं। हाँ, तो फिर ये तो कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन वाला मामला नहीं है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, अब तो डिपेंड करता है ना कि जब दोनों एक पेज पे होंगे फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तो ये तय होगा कि दोनों एक पेज पे कब आते हैं या किस वक्त। आपको क्या मसला है अगर आर्मी चीफ, एस्टैब्लिशमेंट, मेरी सुने, गवर्नमेंट, मेरा सवाल ये एक पेज पे मसला क्या है? नहीं, मेरा एक सवाल एक पेज का नहीं है। मेरा सवाल है कि आईने पाकिस्तान 1973 की जो तिया पांचा जो शक्ल बिगाड़ दी है, जो आइन और कानून साजी आप कर रहे हैं, जिस तरह से बिल्डोज कर रहे हैं सिस्टम को, ये अच्छे तरीके से की जा सकती है। अब ये एक नई रवायत हो गई, मैं अब कानूनी बात कर रहा हूं जी। देखिए जजेस की जो रिटायरमेंट लिखी होती है ना, उससे आगे जो मर्जी आप कर लें। मैं कहूं कि जनाब चीफ जैसे 10 साल के अनटिल अनलेस जो बैरियर क्रॉस नहीं करता ना, इसी तरह से जो अब मिसाल के तौर एक तरमीम की गई है 8C के अंदर, उस पर बहुत जल्दबाजी में कर लिया, जैसे 26वीं तरमीम की, वो इनके गले पड़ेगी। मैं आपको पहले बता दूंगा आपको कि वो जो वहां बैठकर आपको क्या करना था, आपको रिटायरमेंट की एज एक ही रखनी थी, व्हाटएवर इट इज। यानी आपने एक ऐसा लकूना कर, जब चीफ जस्टिस का टेन्योर बना दिया 3 साल, सर, तो लेकिन रिटायरमेंट बना दिया। देखिए रिटायरमेंट एज वही है, 65 ही है। यानी यहां पर जो मसला है ना, अब अगली बात की तरफ आए हम, जो बड़ी मजेदार बात है कि इस वक्त पंजाब के अंदर आज ही जारी हुआ है 26 लाख सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,46,000, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। हमने ना सिविल कोर्ट का सिस्टम ठीक किया, ना सेशन का सिस्टम किया। मकसद क्या है इसका? वो मकसद मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लिखी जाएगी। अल जिहाद ट्रस्ट जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है, 17 जजेस है ना, अब वजह बताएं कि 17 और 17 क्यों किया आपने, 34 ही क्यों की आपको? भाई आधे आपके साथ मिले हुए थे, गवर्नमेंट का तासुर है ये। देखिए ना, मैं बताऊँ आपको, मैं आई बैक टू डिफर सर। जब मैं हाई कोर्ट में जब जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में मेरे ओपिनियन सुन लें, मेरे बड़ी रिजर्वेशन है। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में बड़ी रिजर्वेशन। अच्छा, क्यों किए 34? इसकी मकसद क्या है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है उसको आप सबूताज करना है। कैसे? जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल था, अदलिया की आज़ादी का था, पार्लियामेंट की मर्जी जो चाहे करे। ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता, ये मैं बता दूं। ये हो गया है, अब हो गया है ना, इसका मैं इसलिए और आप कुछ नहीं कर सके। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हम कर क्या सकते थे? फॉर्म 45 और 47 की असेंबली में हम क्या कर सकते? शोर डाल सकते थे ना। और वो देखे रोना पीटना नहीं है। बुशरा बीबी साहिबा ने जो देखे मुझे सख्त एतराज है, मैं देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, कोई रोना पीटना नहीं है। आज रोई है वो अदालत में। सर देखिए वो मैं जब आंसू से रोई है, जब आप सवाल पूछेंगे अभी जवाब मैं आता नहीं, इसमें एक खत्म कर दूं बात आपको। अब देखिए अब क्या हुआ है, आपने पता है आईन के आर्टिकल 217 में भी एक इलेक्शन कमीशन को ताहियात इशू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीन एक्सटेंशंस का इशू था, 3 एक्सटेंशंस का इशू था। कुछ काम हो गया आईनी तरामीम में, कुछ कानून के तहत हो गया। अब मैं जो समझ रहा हूं ना, मुझे जो नजर आ रहा है, अब ये तैयारियां करें अपनी, ये जो हुकूमत किस चीज की तैयारियां करें, जाने की तैयारियां करें या एहतसाब की तैयारी करें। इन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए। अब जो लूट मार जो कुछ भी है, एहतसाब का दिन आज से नोट कर ले मेरी बात, आपको आज से शुरू होगा। आबिद आज भाई से शुरू होगा ये। कैसी तरमीम कर दी आपने? वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के जाने का टाइम स्टार्ट हो गया आज से, और ये तरमीम आपके गले पड़ जाएगी, खासतौर जजों वाली। आबिद भाई आज खुश क्यों हैं और मुस्कुरा रहे हैं? कामरान साहब, आपकी उनकी भट्टी साहब, आपकी मोहब्बत है, आपको देख के मैं खुश मुस्कुराता हूँ वैसे भी। नहीं बहुत शुक्रिया। शायद साहब मैं तो नंबर 1 जो अभी मेरे भाई जो PTI के बैठे हैं वकील साहब जनाब, ये कहते हैं कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट ने कर दिया। आप कौन होते हैं कि पार्लियामेंट को ओवर रूल करने वाले, या पार्लियामेंट के, अगर पार्लियामेंट आइन बना सकती है,
पार्लियामेंट 273 उस वक्त 73 का आइन बना सकती है, तो पार्लियामान ही है ना, कोई फरिश्ते तो नाज़िल नहीं होते। आप भी वकील है, आप भी जज बन सकते हैं, आप में क्या कबात, आप चोर हैं? न शक्ल पे आपके लिखा नहीं है कि आप चोर हैं कि आप जज नहीं बन सकते, आप जज बन सकते हैं। आपको कहें जी आप आबिद शिरडी के जज बन जाइए, यार को खुदा के लिए जाने दें। ये आप रिटायर्ड, कोई 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन रहा है पाकिस्तान में, कोई 9 महीने के लिए बन रहा है, कोई 1 साल के लिए बन रहा है, कि ये क्या आपने टोपी ड्रामा किया हुआ है शुरू। मैं सहाफ़ियों में बैठता था, मुझे कहता था यार आबिद शिरडी आपकी हुकूमत आती है, अब जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं लाते, आपकी सबसे बड़ी ये कमजोरी है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मैं उनका सुनी गई अब जुडिशल आबिद भाई के दोस्तों की सुनी गई, पाकिस्तान की सुनी गई और सुनी गई। बात करें जी आबिद भाई, बताया मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू का। आवाज सुनने ना जी मेरी बात, और मुझे आपसे बड़ा शदीद एतराज है, आज मैं आपको बताता हूं, आप बात कंप्लीट कर साकिर निसार। जी देखे साकिर निसार की जज अदालतें यहाँ पे रही हैं, जस्टिस सईद खोसा की रही हैं, एजाजुल एहसन साहब की रही है, बंदयाल साहब की रही है। वो क्या था, क्या मुझे बताएं? उससे पहले आप जिसको मर्जी बुला लें, ओए तेरी ऐसी थी तैसी, तुम छड़ांगे नहीं, उनके कहने पर टिकट्स चलते थे, कोई आइन के मुताबिक काम नहीं होता था, कोई लोग पाकिस्तान छोड़ें, एक सियासतदान का केस हो 13 जज सुर्खी ला के बैठ जाते हैं जी। अगर गरीब आदमी ने इंसाफ लेना हो तो उसकी 3-3, 4-4 नस्लें घिसट जाती हैं, क्योंकि वहां पर टिकर्स नहीं चलते, उस वक्त इंसाफ नहीं होता। अब मुझे बताएं कामरान शाहिद साहब, मेरे मोहतरम भाई भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है दोनों काबिल एहतराम से। तीसरे भी इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे वो कहते थे कि मैं जनरल फैज हमीद की ड्यूटी लगा देता था, पार्लियामेंट को वही रन करते थे, सेनेट का इलेक्शन उन्होंने मैनेज कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा आइन इमरान खान या पीटीआई को, तो आपने सोचा कि इमरान खान पीछे को रहे, मुझसे आगे जाते हैं, अब 10 साल आगे जाते हैं। सुन लें जी हम देखें, हमने क्या चाहना है, जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी अच्छा हो। मुझे आबिद भाई बात बताएं, आप अपनी मर्जी से बैठ के फैसले कर दें। 34 जजेस लाने से आइन की हुक्मरानी कैसे होगी, गिवन द फैक्ट? पूरी बात सुने, मेरी बात सुने यार, पूरी बात तो सुने, आपने जवाब देना। मेरा एक सवाल का वो रो पड़, आपके पैनल पे सवाल देने लगा हूं, करें जी, सुन ले। आपके पैनल में एक सवाल छोड़ता हूं। कांग्रेस है अमेरिका में, वो लाइफ टाइम के लिए चीफ जस्टिस का इंतखाब करती, लाइफ टाइम के लिए। ये भी आ जाएगी तरमीम आपकी, कोई टीवी प्रोग्राम कर दिया आपने कर दिया। यहाँ पे पीटीआई आजकल अपने रोना धो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन कर रही है। मैं इनके माई बाप की बात कर रहा हूँ, जो साइफर कहते हैं कि जी हमें अमेरिका ने निकाल दिया, अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका में वापस लाए। मैं तो शायद अमेरिका भाई बाप नहीं हमारा, अमेरिका नहीं, ट्रंप है, ट्रम्प आगे माई बाप जो बैठे अमेरिका में, ताड़ को लेके आए थे ना एक, वो कांग्रेस वो बाइख्तियार है कि लाइफ टाइम के लिए चीफ जस्टिस। अच्छा आबिद साहब, मेरा एक सवाल आबिद भाई, मेरी बात। अब आप अपने माई बाप की जो रविश है उसको माने। माई बाप नवाज शरीफ का कहते हैं जी इमरान खान, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आबिद भाई मुझे एक बात बताएं, क्या कर रही है।